Hello everyone, good evening. So shall we start with the today's session or should we wait for some people to come online? Okay, I think I should start. So good evening. I am Sanket Patil. I am from Pune and I have done my MBA from MIT School of Management Pune, and from that time also I was thinking to being a banker and to start the banking domain and to work in a banking domain. And today I am working with the reputed bank of France, that is Extra Business Services, which is a bank plus insurance company. And for today I'm invited for this session where I will going to talk about how bank works, what bank is all about, and what are the operations involved into a bank. And I just want to know that you are doing well, and I hope you're safe at home and enjoying this quarantine period. And you should feel safe. You should take care of yourself and your parents. So I will start with the session where I will going to talk about the bank not in detail, because if I'm going to talk in technicalities then it will be going to be overdose for you. So it will be better for you, for your information, that I will provide you basic information about the banking operations and how actually bank works. So I will quickly start with the first term, that is bank. So what bank means? Bank means nothing but a financial institution where exchange of money happens. Exchange of money means all the related banking money related transaction happens. So one question will obviously come into your mind, that financial institution means what? So there are multiple sort of financial institutions which runs and which helps to support our economy at best level, and bank is also a part of them. Then how bank plays a major role into economy, because at the end bank plays with the money and money related transaction. So it is a very big ball to play into the court, so we will not jump into that. So bank means nothing but a financial institution. Okay, you just keep in this mind, where whenever any money related transaction happen, that institution is called as bank. Okay, and banking means nothing but doing those banking bank related transactions at banks, that is called banking. So there are multiple sorts of bank in today's Indian economy, that depends upon the sector to sector. So there are basically 2-3 types of major sorts of banking sector. उसमें आते हैं प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड बैंक एंड इन्वेस्टमेंट बैंक. सो आपको ऐसे लगता होगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब क्या? तो जैसे कि स्टेट बैंक, महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये आती है विच कम्स अंडर public sector. So public sector under means what? So they are owned, regulated and controlled by Indian government. So that's why they are called as public sector banks. And next type of bank is private sector. So private sector banks are nothing but the banks which are owned, controlled by private people, like the business people. So the HDFC Bank, Axis Bank, Yes Bank, these are the private banks. Then the third type of bank is cooperative bank. The bank which are run and owned by the cooperative societies, those banks are called as cooperative banks. Those banks are generally run for the village areas to satisfy their banking requirements. Then the next sort of banking type is investment banks. Investment bank nothing but the banks which deal with the 2 or 3 countries. जैसे कि कोई बैंक है जो इंडिया में भी फंक्शन करती है और साथ साथ अमेरिका, चाइना और इतर देशों में भी उसका व्यवहार है, वैसे बैंक को इन्वेस्टमेंट बैंक कहा जाता है, जहां पे
कंपनियां अपना इन्वेस्ट करती है और बैंकिंग अपना उनके साथ निभाती है। ऐसे बैंकों को इन्वेस्टमेंट बैंक कहते हैं। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंडिया में बहुत तरीके की बैंक है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कमर्शियल बैंक, रूरल पब्लिक बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इन सब बैंकों को कौन ओन करता है, कौन कंट्रोल करता है? सो आपने नाम सुना होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज RBI। तो ये है हेड ऑफ द बैंक। वी कैन कॉल इट एज अ फादर ऑफ ऑल बैंक्स। जैसे कि हमारे घर में हमें अपने पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हम कोई गलती करते हैं तो हमें अपने माँ बाप चिल्लाते हैं। तो वैसे ही RBI प्लेज अ रोल ऑफ फादर फॉर दोज बैंक। इफ दिस बैंक डज एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स, एनी सॉर्ट ऑफ क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, एनी सॉर्ट ऑफ दे क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ फ्रॉड, देन दिस बैंक प्ले अ वेरी मेजर रोल टू कंट्रोल देम। ठीक है। और आपके मन में यही भी सवाल आएगा कि चलो ये बैंक तो है, ये तो बैंक हमारे लिए काम करती है, हम वहां पे जाके हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बैंकिंग रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करते हैं, पर ये एक्चुअली बैंक वर्क कैसी करती है? तो आप एक कुछ जमाने के पहले जाइए कि जहाँ पे बार्टर सिस्टम हुआ करती थी। बार्टर सिस्टम के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे कि हर एक ट्रांजेक्शन अच्छे से सेटिस्फाई नहीं हो पाता था, पूरा नहीं हो पाता था। तो वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैंक सिस्टम एग्जिस्टेंस में आई। तो बैंक कैसे वर्क करती है? जो भी हम बैंक से लोन लेते हैं उस पर जो बैंक हमें इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसके बेसिस पे बैंक अपना फंक्शन और ऑपरेशंस निभाती है। ओके। तो बैंक इज नॉट अ प्रॉफिट और बैंक इज नॉट अ सर्विस इंडस्ट्री, बेसिकली इट इज प्रॉफिट कम सर्विस इंडस्ट्री। सो ये ख्याल अपने कभी कभी लगता होगा कि बैंक तो बस हमें अपने पैसे रखवाती है और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देती है, तो बैंक कैसे वर्क करती होगी? नहीं, बैंक हम जो कभी हमें लोन्स की जरूरत पड़ती है हमारे एजुकेशन के लिए, हमारे घर के लिए, तो वो लोन्स के अगेंस्ट जो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उसके ऊपर बैंक फंक्शन करती है। तो ये है होता है बैंक का असली ऑब्जेक्टिव टू किस तरह के उनका पर्पस होता है कि वो क्यों एग्जिस्टेंस में आई हमारे सिस्टम में और इकोनॉमी में। तो जैसे कि बैंक एक सिस्टम है जहाँ पे मनी रिलेटेड एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो ऑब्वियसली आपने सुना होगा कि बैंक में अकाउंट्स होते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं, कंपनी अकाउंट्स होते हैं। ठीक है। तो हम बात करेंगे किस किस तरीका के अकाउंट होते हैं बैंक में। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ अकाउंट इनटू बैंकिंग। सो आई विल नॉट गोइंग टू गिव अ डिटेल आइडिया और डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, एज फॉर योर एज like your information is concerned, I will going to tell you only 2-3 types of account which will going to benefit for your day-to-day banking transaction and needs. So first and foremost account is savings account. So savings account is nothing but, the name itself suggests that savings account nothing but the account which are opened or provided by the banks to the individual to open their savings, to create their savings. जैसे कि हर एक बंदे का एक सेविंग्स अकाउंट होता है, तो हमारे पास जो भी हमारे सेविंग्स होती है, जो हम हमारे खर्चे में से थोड़े बहुत पैसे निकाल के जो भी सेविंग्स होती है वो अकाउंट में डालते हैं। क्यों? कि हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आई या कोई इश्यूज हुए तो उसे सॉल्व करने के लिए हम सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं और उसमें जो पैसे रखते हैं वो हमें फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए सॉल्व करने के लिए हम वो पैसों का इस्तेमाल करते हैं। तो एक प्रकार हो गया सेविंग्स अकाउंट। तो सेविंग्स अकाउंट सिर्फ सेविंग्स तक ही निर्मित नहीं रहा, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि वो सेविंग्स पर हमें बैंक इंटरेस्ट देती है। जैसे कि आज मैंने 10,000 रुपए अपने सेविंग्स अकाउंट में रखे, तो उसके ऊपर एक अभी के रेट के हिसाब से 3.5 to 4% का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, जो कि हमारे एक सेविंग्स के ऊपर एक हमारे बेनिफिट ही है। ठीक है। तो जनरली बैंक सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए लोगों को बहुत ये करती है कि सो दैट्स वाई जो भी हम पैसे बैंक के साथ रखते हैं वो बैंक उस मनी का फ्लो मार्केट में करके अपना रेवेन्यू जनरेट करती है और हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है। और दूसरा महत्वपूर्ण अकाउंट है विच इज करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट मतलब, ये नाम ही आपको यहाँ पे बता रहा है कि करंट अकाउंट मतलब क्या। करंट मीन्स डेली, ईच एंड एवरी टाइम। सो करंट अकाउंट जनरली ओपन बाय बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन होते हैं वो करंट अकाउंट ओपन करते हैं और बैंक की फैसिलिटी उन लोगों के लिए ही देती है, क्योंकि बिजनेसमैन लोगों का कैसा है, वो जनरली सेविंग्स इतने
उनके सेविंग्स अकाउंट होते हैं, बट जैसे कि उनके बिजनेस पर्पस के लिए वो करंट अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, जिसपे इंटरेस्ट रेट बहुत ही ना के बराबर होता है। तो करंट अकाउंट क्यों अस्तित्व में आया? जैसे कि करंट अकाउंट, जैसे बिजनेस मैन लोगों को अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन्स करने के लिए हमेशा कैश का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो करंट अकाउंट में बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती है, जहां पे वो बिजनेसमैन और वो इंडिविजुअल कभी भी बैंक में जाके अपना कैश विड्रॉ कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है और अपनी बैंकिंग नीड सेटिस्फाई कर सकता है। क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज है जहां पे पैसे का आना और जाना ये कंटिन्यू चला रहता है। सो करंट अकाउंट उन लोगों के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। और थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है जो आजकल बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, दैट इज फॉरेक्स अकाउंट। सो फॉरेक्स अकाउंट नथिंग बट वेयर एक्सचेंज ऑफ मनी हैपेंस बिटवीन टू करेंसीज। फॉर एग्जाम्पल, हम है इंडियन सिटीजन, वी अर्न इन रुपीज और अमेरिका में डॉलर यूज होता है। तो जैसे कि मुझे अपने पापा को यूएस में पैसे भेजने हैं, तो मैं फॉरेक्स अकाउंट के थ्रू वो ट्रांजैक्शन करूंगा, क्योंकि उसके लिए नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन होना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज हमारा करेंसी है रुपीज और उनका करेंसी है डॉलर में। तो इस केस में व्हाट वी डू इज वी पुट आर माय मनी विच इज लाइक आई हैव पुट इट 1 lakhs इन माय अकाउंट एंड आई वांट, एंड एज पर द यूएस करेंसी वो समझ लो $2000 हो रहा है, तो वो अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे विदाउट एनी एनी हैसल फ्री प्रोसेस। ओके, तो बैंक इस केस में क्या करता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आपसे चार्ज करता है फॉर मेकिंग दिस ट्रांजेक्शन। सो ऐसे तरीके के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए फॉरेक्स अकाउंट यूज होता है। तो आप कहेंगे कि फॉरेक्स अकाउंट सिर्फ हम जैसे लोग ही इस्तेमाल करते हैं, तो नहीं। फॉरेक्स अकाउंट जनरली यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स ऑल्सो, कंपनीज ऑल्सो एंड द इन्वेस्टर्स ऑल्सो। सो जैसे कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जो यूएस के इन्वेस्टर्स है, जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना कुछ प्रॉपर्टी लेके या किसी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस केस में फॉरेक्स अकाउंट का इस्तेमाल होता है। ओके, तो ये है थोड़ा सिंपल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। इफ मैं टेक्निकलिटी में जाऊंगा तो आपको बहुत ही ओवरडोज हो जाएगा। सो आपको मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मुझे एक कमेंट आ रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग्स अकाउंट। सो व्हाई सेविंग्स अकाउंट इज बीइंग ओपन? सो यू नो कि एज आई सेड कि सेविंग्स अकाउंट, हमारे जो सेविंग्स होते हैं वो हम अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। तो सेविंग्स अकाउंट का यही इस्तेमाल होता है कि जैसे कि हमें कोई भी फ्यूचर अनसर्टेनिटीज आए तो हम वो पैसे का इस्तेमाल कर सके। जैसे कि हमारे घर में ही वो हम पैसे रखे, तो एक इंसान होता है कि जो कभी भी खर्च कर देता है पैसा, तो हम जो वही पैसे अकाउंट में रखते हैं तो वो सेफ होते हैं। और घर में जैसे कि चोरी का भी संभव बहुत होता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि आप चोरी से बच सकते हैं। और आप जैसे कि आपको पैसे खर्च करने की आदत होती है, वो आप टाल सकते हैं। और आपके ऊपर से आपको बैंक ऊपर उसको इंटरेस्ट भी देता है। जैसे कि आप 10 रुपए डाल रहे हो तो थोड़े दिन बाद वो 12 रुपए हो जाते हैं इंटरेस्ट के साथ, तो आपका इनकम भी बढ़ सकता है। तो ये है इंपॉर्टेंट सेविंग्स अकाउंट का। सेफ्टी ये वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंस है सेविंग्स अकाउंट का। और फोर्थ टाइप ऑफ अकाउंट है विच इज डिमैट अकाउंट। तो डिमैट अकाउंट आपको इतना नोन नहीं होगा, बट जैसे कि अभी बहुत सालों से आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट में हमने इतने शेयर्स लिए, उतने शेयर्स लिए। आपके पापा या आपके कोई रिलेटिव्स शेयर्स में इन्वेस्ट करते होंगे तो उन्हें पता होगा, आपने कभी सुना होगा। तो जो भी शेयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, जैसे कि कोई कंपनी के आप जब शेयर्स बाय करते हो, आप एसओपीज बाय करते हो, तो जो भी ट्रांजेक्शन शेयर्स के बाइंग या सेल के होते हैं वो डीमैट अकाउंट के थ्रू होते हैं। तो डीमैट अकाउंट जनरली इस शेयर्स के बाय और सेल के लिए किया जाता है। सो दीज आर द 4 एंड बेसिक एंड इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स विच आर हैंडल्ड बाय ईच एंड एवरी बैंक। सो आप किसी भी बैंक में जाके आपके बैंकिंग नीड के हिसाब से यू कैन ओपन ऑल ऑफ, आप इसमें से कोई भी आप अकाउंट का ओपन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है, सर विच अकाउंट इज फ्रूटफुल फॉर अस एज अ स्टूडेंट, विच अकाउंट प्रोवाइड मोर इंटरेस्ट? So for this your question, my answer would be you should go for a savings account because you are individual and you are a student. So as far as your criteria is concerned, your only savings account you can open, because current account, as I said,
करंट अकाउंट सिर्फ बिजनेसमैन के लिए होता है, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए करंट अकाउंट ओपन होता है। और डीमैट सिर्फ जो शेयर ट्रेडिंग करते हैं उनको होता है। फॉरेक्स अकाउंट, जैसे कि आपको कोई भी फॉरेक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन करना हो तो उसके लिए फॉरेक्स अकाउंट ओपन किया जाता है। तो आपके लिए सेविंग्स अकाउंट वुड बी मोर बेनिफिशियल। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप अपने बीइंग अ स्टूडेंट, आपको जो पॉकेट मनी मिलती है तो आप उसमें से कुछ बचा के आप वो अमाउंट सेव कर सकते हो, ठीक है। और सेविंग्स अकाउंट में भी एक सब ऑप्शन है, जैसे कि स्टूडेंट अकाउंट। स्टूडेंट अकाउंट में आप वो सेविंग्स अकाउंट ही होता है, पर आप जब बैंक में जाते हो यू कैन गो एंड आस्क देम दैट आई वांट टू ओपन सेविंग्स अकाउंट अंडर स्टूडेंट स्कीम। सो अपने भारतीय सरकार ने एक स्टूडेंट के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट क्रिएट किया है, जिसके अंडर आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको कोई भी फीस या आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना है। आपका किसी भी बैंक में, प्राइवेट, पब्लिक या कोई भी सेक्टर बैंक में जाके आप आपका अकाउंट ओपन कर सकते हो विदाउट एनी चार्ज। सो जैसे कि आप कभी प्रोजेक्ट पे जाते हो, कभी सेमिनार्स में जाते हो, कभी आपको कोई टास्क दिया जाता है जिसके थ्रू आपको अवार्ड, प्राइज मनी मिलता है, या आपको स्कॉलरशिप मिलती है स्कूल की तरफ से फॉर योर हायर एजुकेशन, और आपको कोई ये वेव ऑफ मनी मिलता है फ्रॉम स्कूल की आपकी इतनी फीस माफ हो गई है तो आपको रिफंड हो जाती है। तो ये सब ट्रांजेक्शन्स के लिए आप यू कैन ओपन एन अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट अंडर स्टूडेंट स्कीम, एंड यू कैन टेक अ बेनिफिट ऑफ देम, एंड इसके ऊपर अच्छा खासा इंटरेस्ट भी आपको मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव रिसीव्ड, सर विच वन इज बेटर, पोस्ट ऑफिस और बैंक फॉर सेविंग? सी, if my opinion is concerned, definitely I will suggest you to go for a bank, because post office is not bank. See, post office and bank are those different institution. Bank is related to money. Post office also related to money, but post office never gives you any sort of money related benefits. They only provides you schemes and all those benefits. Post office never come to you for any loan related transactions or anything. So मेरा सजेशन यही रहेगा कि go for a बैंक, बिकॉज आप पोस्ट ऑफिस में एक बार के पैसे दे दिए, देन यू कैन विड्रॉ फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि पोस्ट ऑफिस में स्कीम्स होती है कि एक साल तक आपको पैसे भरने हैं, देन आपके 5,000 के 10,000 हो जाएंगे आफ्टर 5 years और 2 years। तो वो 2 साल या 5 साल आप अपने पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हो, बट बैंक में ऐसी फैसिलिटी नहीं होती है। बैंक में यू कैन एनी टाइम विड्रॉ द मनी, यू कैन डिपॉजिट द मनी। सो जब भी आपके नीड के हिसाब से आप डिपॉजिट भी कर सकते हो और विड्रॉ भी कर सकते हो। ये एडवांटेज आपको पोस्ट ऑफिस में नहीं है। सो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर अ बैंक, नॉट पोस्ट ऑफिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू हैव एक्स्ट्रा मनी और आपको लगता है कि नहीं ये मैं सेविंग्स कर सकता हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है पैसों की, तो पोस्ट ऑफिस के भी बहुत अच्छी स्कीम्स होती है जहां पे आप अपने पैसे सेव कर सकते हो। बट जैसे कि बैंक है जहां पे वो 24/7 अवेलेबल होती है, नॉट फॉर ऑपरेशंस बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि एटीएम्स होते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस होते हैं, उसके थ्रू आप बैंकिंग कर सकते हो। जैसे कि आप नहीं कह सकते कि आप हमें कब अपने पैसों की जरूरत पड़ सकती है। सो ये पॉइंट देख के पोस्ट ऑफिस से कंपेरेटिवली बैंक इज अ मोर बेनिफिशियल ऑप्शन। ओके, देन आई विल मूव टू next topic, that is operations in bank. I hope you are like okay with the sort of communication which are happening, like you are okay with Hindi, English both, or you want to be in, आपको सिर्फ हिंदी में ही देना है तो इस तरह से मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, दैट इज ऑपरेशंस इन बैंक, ठीक है। थैंक्स सर फॉर माई शॉर्ट आउट डिलेमा। ओके, नो प्रॉब्लम प्रीति तिवारी, वेलकम। Then next question is operations. Next topic is operations in bank. So किस तरह के operations होते हैं? So operations मतलब जो हमारे ऑपरेशन थिएटर में होता है वो ऑपरेशंस नहीं, बैंकिंग ऑपरेशन। जैसे कि बैंक में हम क्या क्या चीजें, एक्टिविटीज नहीं बोल सकते, क्या क्या ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट आता है कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट जैसे कि आपके पास कुछ मनी है तो आपको वो घर पे ना रखने के अलावा आप उसको सोच सकते हैं कि आप उसे बैंक में रखें। तो इस केस में आप बैंक में जाके एक कैश डिपॉजिट स्लिप आती है, वो स्लिप आप किस जनरली बैंक एंटर करते से ही राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में ही उनके कॉर्नर्स बने होते हैं। आप वहां पे जाके वो डिपॉजिट स्लिप भर के आपकी जो भी अमाउंट है वो आप बैंक में अपने अकाउंट में डाल सकते हैं।
तो इस केस में आपको बस एक बेसिक डिटेल्स भरनी पड़ती है, आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर और जो भी अमाउंट आप डाल रहे हैं वो अमाउंट डाल के आप डिपॉजिट कर सकते हो। बट आपने देखा होगा, मे बी आप बच्चे हो, आपने अभी मे बी वो सिनारियो नहीं देखा, बट हम जब छोटे थे हमारे टाइम पे जनरली बैंक में जाके हमें पैसे डिपॉजिट करने पड़ते थे। बट अभी ये सिस्टम धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये सिस्टम धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि अभी तो कैश डिपॉजिट मशीन आ गई है। अभी तो डायरेक्टली ऑनलाइन ही एक वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाता है। सो जनरली ये अभी सिस्टम धीरे धीरे कम हो रहा है। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, if you have lack of internet issue, or if you are not nearby any good local network area, then in that case you can go to a nearby bank and you can deposit your money. Okay, I have received one question. Sir, please share information about mutual fund. Okay, I will definitely share, but at this part of discussion is also involved in my today's topic. So definitely I will going to share in detail about the mutual fund also. So I finish the details about the banking operation, then I will definitely move to the mutual fund topic. Then next part of banking operations is cash withdrawal. So cash withdrawal is nothing but whenever we go to bank, whenever we need money, we go to bank and withdraw our money. Okay, so nowadays there are lots of way where you can go and withdraw your money: check, then debit card. These are the two basic mediums of taking back your money into your pocket. Okay, so check के थ्रू कैसे आप विड्रॉ कर सकते हो? If you don't have debit card, if you are not feeling safe, आप सेफ नहीं फील करते हो डेबिट कार्ड अपने साथ कैरी करना, तो इस केस में आप चेक के थ्रू भी अपने मनी निकाल सकते हो। जब भी आप अकाउंट ओपन करते हो, सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो, करंट अकाउंट ओपन करते हो, तब आपको एक चेक बुक दिया जाता है कि जिसके थ्रू आप अपना अकाउंट में रखा हुआ पैसा निकाल सकते हो। उसके ऊपर बस आपको अपना सिग्नेचर और अमाउंट मेंशन करके बस अपने जो कैश काउंटर होते हैं वहां पे बैंक में जाके अपना हार्ड मनी निकाल सकते हो। सो दैट इज द सेकंड एक्टिविटी विच जनरली टुक प्लेस इन बैंक, दैट इज कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल। दीज आर द बेसिक टू बैंकिंग फंक्शंस। ओके, देन चेक, आप जैसे कि आपको चेक के बारे में भी इतना पता नहीं होगा, तो मैं आपको एक बता देता हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेक, दैट इज क्रॉस चेक एंड बेरर चेक। जैसे कि क्रॉस चेक मतलब क्या, जैसे कि अभी मेरा अकाउंट है स्टेट बैंक में और मुझे पैसे देने हैं मेरे एक फ्रेंड को जिसका अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, अपना उस फ्रेंड का नाम चेक के ऊपर लिख के, जो भी अमाउंट मुझे उसे देना है वो चेक पे लिख के उसको दे दूंगा और उसके ऊपर कॉर्नर में क्रॉस कर दूंगा पेन से। दैट इज मीन्स क्रॉस चेक। कि जैसे कि मैं उसको चेक देने के बाद वो चेक कहीं उससे घूम गया या वो उसको ऊपर एक्स्ट्रा मिसयूज कोई ना करे, इसके लिए वो क्रॉस बनाया जाता है। सो दैट पर्सन कैन ओनली पुट दैट चेक इनटू हिज अकाउंट। उसके अकाउंट में ही वो बंदा चेक डिपॉजिट कर सकता है, ना ही कोई दूसरा बंदा कर सकता है। सो ये होता है क्रॉस चेक। जैसे कि आप क्रॉस कर दो सो दैट वो आप सेफ हो जाते हो, कोई भी उसका मिसयूज नहीं कर सकता और वो बंदा सिर्फ अपने बैंक में ही उसका वो पैसा निकाल सकता है। ठीक है। और जैसे कि बेरर चेक हुआ, बेरर चेक में जैसे कि उस पर कोई क्रॉस नहीं किया जाता है। तो इस केस में जैसे कि मैं डायरेक्टली अपने फ्रेंड को बोलता हूँ कि ये चेक ले और अपने मेरे बैंक से जाके पैसे निकाल ले, तो ये केस में भी इजी पड़ता है। पर कोई लोग जनरली डायरेक्टली बैंक में जाके पैसा निकालना दे डोंट फील सेफ और दे डायरेक्टली वांट देयर मनी इनटू देयर ओन अकाउंट, तो वो केस में वो डायरेक्टली पैसा अपने अकाउंट में ले लेते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस चेक एंड बेरर चेक। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज DD. Then DD means nothing but a demand draft. इफ आपके स्कूल के जनरली एडमिशन या कॉलेजेस के एडमिशन डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही होते हैं, जो भी पेमेंट आपके पेरेंट्स करते हैं वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही करते हैं। सो व्हाट इज डिमांड ड्राफ्ट मीन्स? सो एनी इंस्टीट्यूशन, एनी पब्लिक बॉडी, एनी प्राइवेट बॉडी आस्क फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। मतलब कोई भी पब्लिक बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी या प्राइवेट बॉडी, इंस्टीट्यूशन आपको डिमांड करती है फॉर सर्टेन टाइप अमाउंट ऑफ मनी। तो इस केस में क्या करते हैं हम, जैसे कि अभी मुझे एडमिशन लेनी है किसी कॉलेज में, तो मैं क्या करूंगा,
अपने बैंक में जाके बोलूंगा कि मुझे ये कॉलेज के नाम से इतने इतने अमाउंट का डीडी बना के दीजिए, तो वो क्या करेंगे, एक चेक जैसा पेपर होता है जिसपे वो अमाउंट मेंशन करके बैंक का स्टैम्प देके, सो दैट आई कैन डिपॉजिट दैट चेक और डीडी टू दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और कॉलेज, जहां पे वो डायरेक्टली ऑन बिहाफ ऑफ मी वो इंस्टीट्यूशन वो कॉलेज मेरे अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर लेगा। सो ये सेफेस्ट मोड होता है डीडी का ट्रांजेक्शन करने के लिए। आई हैव रिसीव्ड एन क्वेश्चन फ्रॉम प्रीति तिवारी दिस सर, व्हाट इज ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन सर? Okay, so overdraft protection is nothing but if you know FD, fixed deposit, which we make into our account, जैसे कि कोई लोगों को अपने सेविंग्स के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए होता है, तो इस केस में बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसमें आप अपने जो अमाउंट है, फॉर एग्जांपल मेरे 1 लाख रुपीज सेविंग्स में पड़े हैं, सो मैं क्या करूंगा, बैंक को पूछूंगा कि मुझे इसको फिक्स डिपॉजिट में रखना है। फिक्स डिपॉजिट मतलब वो अमाउंट को मैं सर्टेन टाइम के लिए फिक्स्ड कर दूंगा बैंक के साथ, 1 साल 2 साल 3 साल वॉट एवर पीरियड। तो उस केस में बैंक मेरे पैसे लॉक कर देगी और उसके ऊपर जो सेविंग्स पे जो 4% इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर ज्यादा हो जाता है, जैसे कि आज के हिसाब से 6.5 या 7% जो रेट चल रहा है वो आपको बैंक उस पर प्रोवाइड करती है। तो इसके अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन दिया जाता है दैट इज अ नॉमिनेशन फैसिलिटी, सो दैट जैसे कि अभी मैंने अपने 1 लाख की एफडी बनाई है अपने अकाउंट में, तो उसमें मैं प्रोटेक्शन कैसे करूं, इफ फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो वो पैसों का क्या होगा। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, जैसे कि अपनी फादर या मदर या अपने भाई बहन किसी को भी उसमें एज ए नॉमिनी ऐड करता हूँ कि इन केस फ्यूचर में मुझे कुछ हो तो वो पैसों के ऊपर कस्टडी उनकी रहे। तो जैसे कि जो मैं अपने पेरेंट्स को या रिलेटिव्स को जो ऐड करता हूँ एज ए नॉमिनेशन, दैट इज नथिंग बट ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन। Okay, overdraft means you can they can overdraft your money anytime without your presence when you are not like alive. Okay, then next type of operation in which you can go and do the banking transaction, that is account servicing। जैसे कि आपने कोई अकाउंट ओपन कर लिया, सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया स्टूडेंट्स ने, और आपको उसमें छोटी छोटी चीजें कर सकते हो, जैसे कि आपका एड्रेस, आप जैसे कि कोई एक एरिया में रहते थे तो अब वहां से आप दूसरे एरिया में चले गए, तो उस केस में आप एड्रेस चेंज कर सकते हो। आप बहुत सारे उसमें नॉमिनेशन ऐड कर सकते हो। देखो, हर एक अकाउंट में नॉमिनी होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि किसी व्यक्ति के डेथ होने के बाद जो भी उसका पैसा है उसके ऊपर किसी की कस्टडी होना जरूरी है, विच इज अ ब्लड रिलेशन, विच शुड बी अ ब्लड रिलेशन। सो इस केस में नॉमिनी एडिशन करना जरूरी है। तो ये से मिसलेनियस ट्रांजेक्शन आप बैंक में जाके कर सकते हो, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग इज ओनली लिमिटेड इज टोटली related to money related transactions. So exchange of money happens, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे जाना, ट्रांसफर ऑफ मनी हैपेंस। सो जो मनी फ्लो होता है फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, उसके लिए भी एक मोड्स होते हैं। जैसे कि आज के प्रेजेंट टाइम में कम से कम 3 से 4 मोड्स ऑफ मनी ट्रांसफर्स है, विच इंक्लूड्स द IMPS, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर। जैसे कि मुझे पैसे भेजने हैं मेरे भाई के अकाउंट में फॉर हिज नीड्स, तो जैसे कि आपको पता होगा फोन बैंकिंग से ही डायरेक्टली आप कर सकते हो, या बैंक में जाके भी आप IMPS का इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पे आप डायरेक्टली आपकी मनी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। For that you just need to go to the bank, you just have to sign the IMPS form, and or within a seconds your money gets transferred from your account to your other beneficiary's account. Okay, then the next sort of payment mode transfer is IMPS is only IMPS generally banks allow for up to transaction of 1 lakh for IMPS। 1 लाख तक के ट्रांजेक्शन के लिए IMPS जनरली बैंक अलाउ करता है आपको, and for more than 1 lakh the next mode of payment is NEFT। एनएफटी के थ्रू भी आप 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से 2 लाख तक का आप ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि कोई लोगों की बहुत ज्यादा बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं, 2 लाख से भी ज्यादा, 10 लाख 15 लाख, तो इस केस में आरटीजीएस करके एक ऑप्शन है,
जो बैंक आपको अलाउ करता है। इस केस में आप 2 लाख के ऊपर जब भी आपका ट्रांजैक्शन होता है तो आप एनएफटी ये नहीं कर सकते, आपको बैंक में जाके आरटीजीएस ही करना पड़ता है। कि वो भी एक जनरली फॉर्म मिलता है आरटीजीएस एंड एनएफटी का, उसके थ्रू आप आपके अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, I have received one question. Sir, being a student whom we keep our nominated person. See, being a student or being anyone, it is mandatory and it is a rule of bank that you should nominate your blood relatives only, like your mom, dad, brother, and sister. Apart from and if someone is married, then husband or wife. Okay. Then we will move to the next topic, that is loans. So banks are generally known for loans. We as an individual, we always need money. हमारे जो भी सपने होते हैं, हमारे जो भी विशेष होती है, जैसे कि मेरा सैलरी है 10,000 और मुझे कुछ करना है, सो एक्टिविटी करनी है मनी रिलेटेड, तो उस केस में मेरे पास इनफ मनी नहीं है, इनफ सेविंग्स नहीं है और उसके कारण मैं अपना चीज वो नहीं पूरा कर पा रहा हूँ। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं बैंक के पास जाता हूँ जो भी मेरी फाइनेंशियल डिफिकल्टी है वो फुलफिल करने के लिए। तो बैंक में जो हमें फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फुलफिल करने के लिए जो सोर्स ऑफ मनी दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज लोन। लोन इज नथिंग बट अ amount borrowed from the bank. I as an individual, I have borrowed money from bank, that is called as loan. Okay, तो loans में भी बहुत सारे तरीके के लोन होते हैं। तो first sort of loan which I will going to cover, that is personal loan. So personal loan nothing but the loan which is being taken for my personal expenses और like my personal needs, जैसे कि मेरी बेटी की शादी है या मुझे कहीं घूमने जाना है, फॉरेन टूर पे जाना है। इस केस में जैसे कोई भी पर्सनल रिलेटेड थिंग हो, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, वो चीज मॉनेटरी बेनिफिट फुलफिल करने के लिए यू नीड सर्टेन सॉर्ट ऑफ मनी। सो फॉर दैट केस आई गो टू अ बैंक एंड आई आस्क फॉर अ पर्सनल लोन। और उसके ऊपर बैंक एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ आपको इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो उसके अगेंस्ट आपको बैंक लोन प्रोवाइड करती है। तो आपको एक क्वेश्चन ऑब्वियसली मन में आएगा कि सर मैं ले सकता हूँ क्या लोन, या मैं ले सकती हूँ क्या लोन। तो मेरा इसके ऊपर जवाब रहेगा कि नहीं। आप फॉर दैट यू शुड हैव फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया सेट बाय द बैंक। जैसे कि आप अर्निंग होने चाहिए, आपका एक सर्टेन स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ सैलरी होनी चाहिए, या आपका बिजनेस में उतना आपका अर्निंग्स होना चाहिए। उसके बेसिस पे ही आप लोन को अप्लाई कर सकते हो, विच इज पर्सनल लोन ओनली, बिकॉज इट इज अनसिक्योर्ड लोन। जैसे कि लोन में आपको मैं कहना भूल गया, 2 तरीके के लोन होते हैं, दैट इज पर्सनल सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन मतलब क्या, द लोन्स विच आर सिक्योर्ड अगेंस्ट समथिंग, एनी प्रॉपर्टी और एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड एज सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन मतलब क्या, विच इज नॉट सिक्योर्ड अगेंस्ट एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड एज अनसिक्योर्ड लोन। तो अनसिक्योर्ड लोन में पर्सनल लोन आ जाता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट बैंक आपको कोई भी मॉर्गेज नहीं मांगती, ठीक है। इसलिए ये लोन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और आपके इनकम पे, आपके एज पे, आपके जॉब के एक्सपीरियंस पे आपको ये लोन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ लोन है होम लोन। तो होम लोन, as name itself suggests that home loan nothing but the loan which is being given by bank to an individual for his home, like for building of house or like buying of house or like repurchase of house। इस केस में हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि घरों के रेट देखे जाए तो बहुत होते हैं, इतने सेविंग्स भी हमारे पास नहीं होती, और हम इतने वो घर हमें आज लेना होता है और हम उतने टाइम तक नहीं रोक सकते कि उतने हम सेविंग्स जमा करें और तब जाके घर ले। तो इस केस में हम बैंक के पास जाते हैं और हम उनसे लोन लेते हैं। सो होम लोन इज सिक्योर्ड लोन, क्योंकि जब आप बैंक से होम लोन लेते हो तो बैंक आपसे वो होम की कस्टडी रखती है। जब तक आप अपना लोन बैंक को रिटर्न नहीं करते, तब तक वो घर की कस्टडी बैंक के पास होती है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिक्योर्ड लोन। सो होम लोन भी आप अप्लाई कर सकते हो वंस यू विल स्टार्ट अर्निंग, वंस यू विल हैव इनफ अमाउंट ऑफ financial background or job background, then you can definitely apply for a home loan and you can build your own dream house.
ठीक है। और थर्ड टाइप ऑफ लोन है जैसे कि प्रॉपर्टी लोन। जैसे कि कोई लोगों को फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो गई या इनफ पैसे नहीं है, उनका कोई बिजनेस प्लान है या कोई चीजों के लिए उनको पैसों की जरूरत है और उनके पास अपना खुद का घर है, उसके ऊपर बैंक का कोई लोन नहीं चल रहा, तो इस केस में बैंक क्या करती है, बैंक उनको बोलती है कि जो आपका घर है या आपका फ्लैट है या आपकी कोई जगह है उसके ऊपर हम कस्टडी कर लेंगे और उसके ऊपर उसके अगेंस्ट हम आपको लोन देंगे। जैसे कि मेरी कोई जगह है पुणे में, उसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए और उसके अगेंस्ट मुझे चाहिए 5 लाख रुपए, तो डेफिनेटली बैंक मेरी वो जगह पर कस्टडी रख के जो मेरे पेपर्स है प्रॉपर्टी के उसको कस्टडी करके, मेरा इनकम देख के, मेरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करके, जैसे कि मेरी प्रोफाइल क्या है, मेरे पर कोई केस चल रही है नहीं, या मेरी जॉब क्या है, मेरा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, ये सारी चीजें देखने के बाद आपको बैंक प्रॉपर्टी लोन या कौन सा भी लोन देती है। और एक तरीके का लोन है जैसे कि ऑटो लोन और कार लोन। जैसे कोई कोई लोगों को अपनी कार खरीदनी होती है, उसके लिए भी बैंक कार लोन प्रोवाइड करती है। कमर्शियल व्हीकल्स लोन, जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट के ट्रक्स होते हैं वो बाय करने के लिए भी आपको बैंक लोन प्रोवाइड करती है। एक अभी न्यू 2-3 साल पहले ही कंसेप्ट आई गोल्ड लोन, जो अपने पास जो जेवरात होते हैं गोल्ड के, सिल्वर के, उसके अगेंस्ट भी आपको बैंक गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है। एजुकेशन लोन इज अ पार्ट, एजुकेशन लोन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी नाउ यू आर स्टूडेंट, फॉर योर बेटर फ्यूचर यू माइट नीड सर्टेन सॉर्ट ऑफ मनी फॉर टू परस्यू योर एजुकेशन, तो आपके लिए एजुकेशन लोन भी एक ऑप्शन बैंक देती है जो अनसिक्योर्ड लोन है। तो आप ये बोलोगे कि सर हमें कैसे मिलेगा एजुकेशन लोन, तो बैंक ने और गवर्नमेंट ने उसके लिए एक ऑप्शन रखा है जहां पे आपके जो एजुकेशनल स्कोर्स है, जैसे कि आप 10th स्टैंडर्ड में हो अभी, तो 10th स्टैंडर्ड में आपको अच्छे परसेंटेज से आप पास हुए, तो और आपको हायर स्टडीज के लिए कहीं जाना है, जैसे कि यूएस जाना है या कहीं दूसरे देश में जाना है पढ़ने के लिए, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। इफ आपके स्कोर्स अच्छे हैं तो बैंक आपके स्कोर कार्ड्स देख के आपके ऊपर ट्रस्ट करके, ट्रस्ट एक और गुडविल, ये बेसिस पे बैंक आपको लोन प्रोवाइड करती है विच इज कॉल्ड एज एजुकेशन लोन फॉर योर बेटर फ्यूचर। और उसके ऊपर भी डेफिनेटली चार्ज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक, बट वो ना के बराबर, बहुत ही कम होता है। तो आप वे बोलोगे कि ये लोन हमें सरकार या बैंक माफ कर देती है क्या, तो नहीं। एजुकेशन लोन इज नॉट बीइंग like forgiven by the banks. Once you will start earning, once you will get the job, once you will complete your education and you will get the job, you will start repaying that amount. So ये भी एक बेस्ट फैसिलिटी है which is bank has provided to the students, which is education loan. Okay, I have received few questions. Sir, I want to know loan grading. Loan grading is nothing but लोन इज बीइंग ग्रेड एज पर एज प्रोफाइल इज कंसर्न। सो कोई भी बंदा जाके कोई भी लोन नहीं ले सकता। जैसे कि जब मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं है और एंड मैं जाके उनको बोलो कि आई वांट प्रॉपर्टी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो वैसा नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि आपको उस सर्टेन लोन को लेने के लिए उतने सर्टेन क्राइटेरिया आपको क्रॉस होना और उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, उसके लिए आपका उतना सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी भी चाहिए। जैसे कि अभी मेरा इनकम है 10,000 रुपए और मैं 10 करोड़ का लोन मांगूंगा बैंक से, तो बैंक मुझे देगी क्या? एक नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इस केस में बैंक आपको नहीं लोन देगी। बैंक क्या चेक करती है जब भी आपको लोन देती है कि आप जो बैंक आपको जो अमाउंट ऑफ लोन दे रही है वो आप में कैपेसिटी है क्या रिपे करने की, उसके बेसिस पे वो आपको लोन प्रोवाइड करती है। दैट इज कॉल्ड एज लोन ग्रेडिंग। सो दे ग्रेड योर प्रोफाइल, दे ग्रेड योर बैकग्राउंड, दे ग्रेड योर सैलरीज, दे ग्रेड योर एक्सपीरियंस, दे ग्रेड योर ऑल और लाइक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे प्रोवाइड योर लोन। दैट इज कॉल्ड एज लोन ग्रेडिंग। The next question is, sir, may you explain equity home loan? Equity home loan is nothing but if you might have heard about the term equity. Equity is nothing but a type of share. Okay. So जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, लॉट्स ऑफ पीपल इन्वेस्ट इनटू शेयर्स। तो शेयर इक्विटी इज अ टाइप ऑफ शेयर जो बहुत लोगों के पास होते हैं, जो कंपनीज प्रोवाइड करती है पब्लिक
लिस्टेड कंपनीज हो, प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज हो, ये प्रोवाइड करती है। लोगों के पास बहुत सारे सॉर्ट ऑफ अमाउंट में वो होती है, इन्वेस्टमेंट्स होती है इक्विटीज में। तो जैसे कि मेरे पास 50 लाख की इक्विटी शेयर्स है और मुझे होम लोन लेना है, और इस केस में मैं बैंक के पास जाता हूँ और उनको बोलता हूँ कि सर मेरे पास इतने इतने 50 लाख की इक्विटी शेयर्स है टाटा कंपनी के, तो ये इसके बेसिस पे मुझे लोन मिलेगा क्या? तो डेफिनेटली यस, आपको लोन मिलेगा। इस केस में क्या हो जाता है, जब तक आपका होम लोन चलेगा तब तक वो इक्विटी शेयर्स की कस्टडी बैंक के पास रहेगी और उसके अगेंस्ट आपको बैंक होम लोन प्रोवाइड करेगी। दैट इज कॉल्ड एज इक्विटी होम लोन। ओके, then next question is, any certain age for education loan? See, there is no certain age for education loan. For education loan, any student who like going for certain sort of higher education, for example, if a student who is in 8th standard or 5th standard and is going to some top institute of India, like Oxford or Orchid, in this institution that particular student is going for his higher studies, definitely in that case bank will going to provide him a loan, because for bank वो स्कूल की गुडविल बहुत बड़ी है, इसके लिए बैंक वो स्टूडेंट को लोन प्रोवाइड कर देगी। सो एजुकेशन लोन में कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है, बस क्राइटेरिया यही है कि जो लोन लेने वाला है दैट पर्सन शुड बी अ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट होना चाहिए, या वो अपने स्टडीज के लिए ही वो पर्टिकुलर अमाउंट बैंक से डिमांड करना चाहिए। अदरवाइज एजुकेशन लोन कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। अभी आई एम एजुकेटेड, मेरी पढ़ाई हो चुकी है, पर मैं जाके एजुकेशन लोन नहीं मांग सकता, बिकॉज मेरा पर्पस नहीं है एजुकेशन करने का आगे। सो कोई भी जाके एजुकेशन लोन नहीं ले सकता है। जब जिसकी डिमांड है, जिसको अपने हायर स्टडीज के लिए या फ्यूचर स्टडीज के लिए जाना है, दैट पर्सन कैन ओनली अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन। I have one question also. As a banker, what provision do you get from? As a banker, what provisions do you get from bank? Provisions, as in, ma'am, could you please clarify which provisions you are talking about? Till the time we will cover other topic, next topic, which is plastic money. So you might have heard about the term plastic money. If you are not, then I will tell you about the concept of plastic money. Plastic money is nothing but, आपको लगता होगा कि प्लास्टिक के नोट्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। प्लास्टिक मनी नथिंग बट योर डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। तो आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स यूज करते होंगे डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, तो जो अपने पॉकेट में रखते हैं टू सेटिस्फाई देयर डे टू डे कैश नीड्स, तो दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टिक मनी। तो प्लास्टिक मनी का की कैसे इस्तेमाल हुआ? तो जैसे कि बहुत सारे लोगों के कैश रिलेटेड इश्यूज होने लगे कि कैश खो जाना या चोरी हो जाना, या कभी कभी हमारे पास इनफ कैश नहीं होता उतना। जैसे कि मेरे पास अभी पॉकेट में 10,000 है पर मेरे को 15,000 खर्च करने हैं, तो हर बार हम बैंक में नहीं जा सकते ना, हर बार हम बैंक में जाके उतनी अमाउंट नहीं विड्रॉ कर सकते। तो इस केस में प्लास्टिक मनी, जैसे कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स का बैंकिंग टेक्नोलॉजी ने इनोवेशन किया और हम अपनी बैंकिंग नीड्स उसके थ्रू सेटिस्फाई कर लेते हैं। ठीक है, तो डेबिट कार्ड जैसे कि स्वैप करके, क्रेडिट कार्ड स्वैप करके हम अपनी जो भी ट्रांजैक्शन है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, वो फुलफिल कर लेते हैं। आई हैव रिसीव्ड क्वेश्चन, सर एज अ शेयर होल्डर इन केस ऑफ लो मार्केट रेट शैल वी सफर लॉस और ओनली फ्यू पार्ट वी आर बैड डेप्ट ऑफ आवर मनी? सी इफ मार्केट गोज डाउन, सी you might have heard on TV that market related transaction are subject to market risk. So जो जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो या जिस मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो, वो भी आपको बताती नहीं है कि हाउ मच रिस्क यू आर टेकिंग। सो मार्केट रिलेटेड जो भी फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हो या जो भी शेयर्स खरीदते हो, वो कभी भी सेफ नहीं होते। बट हाँ, रिस्क का नाम जिंदगी है ऐसे बोल के हम उस फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और जो भी प्रॉफिट है वो अर्न करते रहते हैं।
सो मेरा सजेशन है कि जब भी मार्केट लो करता है या अप करता है तब शेयर्स को बाय करना या सेल करना सही रहेगा क्या, तो दैट इज योर ओन कॉल, क्योंकि ये आपका पर्सनल डिसीजन रहेगा कि फॉर दैट यू शुड हैव अ डिटेल नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर मार्केट सिनारियो, कि मार्केट सिनारियो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जिस कंपनी में आपने शेयर्स लिए हैं उस कंपनी के उस कंपनी की गुडविल कैसी है, उस कंपनी का प्रॉफिट रेशो कितना बढ़ रहा है, और उस कंपनी में के एसओपीज होते हैं जो जिसके ऊपर शेयर्स का ट्रेडिंग होता है वो कितना है हुआ, इसके ऊपर टोटल डिपेंड करता है. देयर आर लॉट मेनी फैक्टर ऑन विच शेयर ट्रेडिंग हैपेंस. बट इस जब आपको एक ही वर्ड में देना रहा तो मेरा ये कहना है कि मार्केट कम रहे या ज्यादा रहे, व्हेन यू एवर फील कि यू गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, देन यू कैन विड्रॉ द मनी और यू कैन like buy the shares, anything, it's all depend on you. And nowadays there are lots of traders also available from where you can get a guidance and you can do the trading also. Okay, now we will move to the next topic, that is foreign exchange. So you just before some time I spoke about forex account. तो फॉरेक्स अकाउंट के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज में इंक्लूड होते हैं. जैसे कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ, मैं रुपीज में अर्न करता हूँ, माई सैलरी इज 10,000, बट मुझे घूमने जाना है यूएस में, तो उसके लिए जो भी मेरी सेविंग्स है 1 लाख 2 लाख, तो ऑब्वियसली यूएस में जाके तो मैं रुपीज में खर्चा नहीं कर पाऊंगा. तो इन दैट केस व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू अ बैंक एंड व्हाट आई विल डू कि मेरे पास ये 2 लाख रुपए पड़े हैं, तो मुझे इसमें करेंसी में एक्सचेंज करके दो जो है डॉलर्स. तो बैंक इस केस में क्या करेगी, आपके 2 लाख के ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज आपको सर्विस के लिए सर्विस चार्ज आपको चार्ज करेगी एंड दे विल प्रोवाइड यू डॉलर्स. सो दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज. एनी एक्सचेंज ऑफ फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर करेंसी इज कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक विच आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट, दैट इज बैंकिंग फ्रॉड्स. ये आज nowadays it is a very hot discussion about each and everyone कि बैंकिंग फ्रॉड्स बहुत बढ़ रहे हैं, ये स्कैम हुआ वो स्कैम हुआ, मेरे अकाउंट से इतने पैसे कट गए, मेरे बहुत सारा सुनने में आपको न्यूज पे आता होगा. तो why this is happening, just because of lots of online mode of things which we are doing. Yes, each and everything has its own positive and good side also. जैसे कि हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग, ये इन सब चीज़ों से हम बैंकिंग को बहुत इजी करते हैं, पर उतना ही उसका डिसएडवांटेज है. जैसे कि बहुत सारे जो ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं, आपके अकाउंट को हैक किया जाता है, आपके बैंक अकाउंट्स को हैक किया जाता है और आपके जो हार्ड अर्न मनी होती है वो आपके अकाउंट से पुल की जाती है, वो विड्रॉ की जाती है विदाउट योर इन्फॉर्मेशन, विदाउट योर परमिशन. तो ये है ऑनलाइन फ्रॉड्स में आते हैं. जैसे कि आप कोई भी पेमेंट, जैसे कोई भी आप साइट पे जाते हो, फूड ऑर्डर साइट पे जाते हो या कोई एप्लीकेशन पे जाते हो जहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, वहाँ पे जाके आप अपने जब डेबिट कार्ड के डिटेल्स डालते हो तो वो भी सेफ नहीं होती. तो ये बहुत हद तक सेफ नहीं होती, फॉर वहाँ पे आपको बहुत ही प्रिकॉशंस लेना जरूरी है. तो ये प्रिकॉशंस ये आते हैं बैंकिंग फ्रॉड्स में. तो इस केस में भी bank can't do anything because it's all up to you. Whenever bank has given you all the banking related services, they have taken a signature of yours on each and everything that they will not be responsible for such frauds, because at the end it's your safety also. So ये बैंकिंग फ्रॉड्स भी हमें प्रिकॉशनरी उसके लिए मेजर्स लेने चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए, दैट आई विल गोइंग टू डिस्कस ऑन. देन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड्स. तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड्स मतलब जैसे कि मैंने कहा कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, फूड पांडा हुआ, जोमेटो हुआ, या आप जो अपने मोबाइल ऐप से पैसे ट्रांसफर करते हो, दैट कम्स अंडर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड्स. जैसे कि बहुत सारे लोग फेक अकाउंट्स भी ओपन करते हैं बैंक्स में जाके. तो वो फेक अकाउंट्स में आपको कोई कॉल करके बोलता है कि आप ये अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कीजिए, देन हम आपको ये चीज़ आपके घर पे पहुंचा देंगे, या कोई भी चीज़ आप जो बाय करते हो. बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है. आप पैसे तो भर देते हो बट फिर आपको वो चीज़ मिलती नहीं है. वो चीज़ आती है ऑनलाइन फ्रॉड्स में. तो आपको बहुत ही कॉशियस होना ज़रूरी है बिफोर डूइंग सच ट्रांजेक्शन. यू हैव टू बी
you have to be very conscious before doing any online transaction. You should take care of all your safety and privacy measures which are provided by your bank. I have received one question which is from Preeti Tiwari. Sir, what will be the nominal exchange rate? See, exchange rate all depend on country to country. For US, for UK, it's different. So it's not specific. It's depend on the rate of that country's particular country's currency rate. If अभी UK का है 78 या 80 है यूके का, तो उसके हिसाब से आपको चार्ज किया जाता है. सो एक्सचेंज रेट इज नॉट फिक्स, बट एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न फॉर यूएस एंड यूके इट्स अराउंड 11 to 12%. ओके. The next question is, sir, floating exchange rate, can you explain? Okay, floating exchange rate is nothing but floating मतलब float मतलब क्या, डामाडोल. फ्लोट मतलब क्या, यहाँ से ना वहां से, मतलब फ्लोट मतलब कम ज्यादा होना. तो फ्लोटिंग, इसके इस नेम से ही वो बता रहा है कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज नथिंग बट द रेट विच इज टोटली डिपेंड ऑन मार्केट. जैसे कि अभी यूएस मार्केट है, यूएस मार्केट में क्या पोजीशन है उसके हिसाब से फ्लोटिंग रेट डिसाइड होता है. जैसे कि आज यूएस की मार्केट कंडीशन बहुत अच्छी है, तो आज का रेट है 15%, बट कल कुछ रीजंस के कारण या वहां पे भूकंप हुआ या सुनामी आ गया, उसके कारण वहां का इकोनॉमी थोड़ी सी अनस्टेबल हो गई, तो ऑटोमेटिकली वो रेट कम हो जाएंगे. सो द रेट विच आर नॉट डिपेंड ऑन एनी पर्टिकुलर थिंग, जो फिक्स नहीं है, तो दोज रेट्स आर कंसिडर्ड एज फ्लोटिंग रेट. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. Then the next topic which I will going to cover is that I have already covered about the online fraud and banking frauds. So I told you I will going to share tell you detail about the how you can take care of such banking frauds. For that, you should never share your password with anyone, be it your friend, colleague, anyone. You should not share your banking passwords with anyone. जो भी आपको पासवर्ड दिए जाते हैं, एटीएम पासवर्ड या आप किसी के साथ मत शेयर कीजिए. या जिसे भी आपको कोई फ्रॉड कॉल्स आते हैं कि सर आप जो ट्रांजैक्शन, जिससे कि आप कुछ खरीद रहे हो, परचेस कर रहे हो, और आपको कोई फेक कॉल आ जाता है और आपको बोलता है कि सर आपके जो अकाउंट फोन पे जो ओटीपी आया है वो आप दे दीजिए, आपका ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा. तो इस केस में भी आप कभी भी अपना ओटीपी नंबर मत शेयर कीजिएगा, अपने बैंकिंग पासवर्ड्स मत शेयर कीजिएगा, आपके पैन कार्ड नंबर भी मत शेयर कीजिएगा, और आपके जो डेबिट कार्ड के बैक साइड में जो सीसीवी 3 डिजिट नंबर होता है वो कभी भी शेयर मत कीजिएगा, और क्रेडिट कार्ड के ऊपर बैक साइड भी 3 डिजिट सीसीवी नंबर होता है वो भी कभी मत शेयर कीजिएगा. सो ये बेसिक प्रिकॉशनरी मेजर्स हम ले सकते हैं सो दैट वी कैन सेव गार्ड आवर मनी. और हमारे बैंक में केवाईसी अपडेट करना भी जरूरी है. केवाईसी क्या होता है, दैट आल्सो आई विल गोइंग टू कवर, विच इज माय नेक्स्ट टॉपिक. सो आप ये बेसिक स्टेप्स फॉलो कीजिए. आपका पासवर्ड किसी से शेयर ना कीजिए, आपका सीवीवी नंबर किसी से शेयर ना कीजिए, आपका ओटीपी कभी किसी से शेयर ना कीजिए. कोई भी कॉल हो, कोई भी आपको कितनी अश्योरिटी दे रहा हो, आप अपना पासवर्ड, ओटीपी और सीवीवी कभी भी शेयर ना कीजिएगा. आप ये 3 मेजर्स फॉलो कर लोगे, आपके साथ कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स नहीं होगा. ओके. और अभी जैसे मैंने कहा कि आपको अपना केवाईसी अपडेट करना बहुत जरूरी है बैंक में जाके. जैसे कि केवाईसी मतलब क्या, नो योर कस्टमर. आपको पता होगा पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, जो हमें डॉक्यूमेंट्स जो अपना आइडेंटिटी बताती है, विच आर गिवन टू अस बाय आवर इंडियन गवर्नमेंट, जो अपना इंडियन फोरम है जिन्होंने हमें ये 3 डॉक्यूमेंट्स अलॉट किए हैं, जिसके बेसिस पे हाँ मैं कह सकता हूँ कि यस आई एम संकेत पाटिल. विदाउट दिस डॉक्यूमेंट नो वन विल गोइंग टू आइडेंटिफाई मी कि हाँ ये संकेत पाटिल है या नहीं. ठीक है, तो ये अपने बैंक में हर साल जाके अपडेट करना जरूरी है. इससे क्या होता है, यू कीप योर आइडेंटिटी ओपन एंड सेफ विद बैंक, सो दैट जो भी ट्रांजेक्शन या कुछ फ्रॉड हो जाता है आपके अकाउंट में, सो इस केस में बैंक आपसे इमीडिएटली टच करके जो भी आपके साथ लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस है, दे विल गोइंग टू रिकवर.
ओके इसमें बैंक का भी फायदा होता है, जैसे कि आप जब भी अपने पैन कार्ड या आधार कार्ड और पासपोर्ट पे क्या होता है, एड्रेस होता है हमारे घर का। तो इस केस में हम जैसे कि हमारे अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन फ्रॉड हुआ या या जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो गई, जैसे मैंने कहा था जो उसके अकाउंट में जो पैसा है वो उसका क्या होगा, तो वो अपने नॉमिनी को चले जाएगा। ठीक है, तो इस केस में बैंक आपको कैसे कांटेक्ट करेगा, तो इस केस में बैंक क्या करेगा, जो आपने अपने जो आधार कार्ड है, पासपोर्ट है या पैन कार्ड है जो बैंक के साथ हमेशा अपडेट किया है हर 6 महीने में, हर साल भर में, उसके थ्रू वो आपको ट्रेस करेंगे, एंड दे विल गेट बैक टू यू विद सम सॉल्यूशन। और आपकी जो भी हार्ड अर्न मनी है, आपका जो भी लॉस हुआ है या डेथ के केस में जो भी आपके फंड्स पड़े हैं बैंक में, वो आपके नॉमिनी को या आपके रिलेटिव्स को दिए जाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अपडेट योर KYC विच इज पासपोर्ट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड एवरी ईयर। ओके, सो दैट इज ऑल्सो बेनिफिट ऑफ KYC। तो KYC जनरली बैंक बहुत आपको डिमांड करती है अपडेट करने के लिए, क्योंकि जितना आपको लग रहा है कि जितना हमें बेनिफिट है एज अकाउंट होल्डर, उतना बैंक को भी होता है, क्योंकि एट द एंड बैंक का रेपुटेशन उसके गुडविल पे होता है। कोई भी बैंक डायरेक्टली अपना नाम नहीं कमा लेती, फॉर दैट दे हैव टू बिल्ड देयर ओन रेपुटेशन। कोई भी बैंक में जो ही फ्रॉड हो गया, कुछ हो गया, जैसे कि आपने बीच में सुना होगा नीरव मोदी, विजय माल्या, इन्होंने बैंकिंग फ्रॉड्स किए, तो ऐसे बैंक्स पे लोग जनरली ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि उनका ओन बिल्ड, क्योंकि एट द एंड मनी होती है, हमारी हार्ड अर्न मनी होती है, कोई भी अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा किसी भी बैंक में जाके नहीं रख सकता। तो फॉर दैट बैंक हैज टू बिल्ड देयर ओन गुडविल, फॉर दैट दे हैव टू follow these basic steps, that is building their own KYC of account. Know your customer, sir. Preeti Tiwari, could you please repeat your question? What exactly you want to know? That is know your customer, KYC, know your customer. As I said, PAN card, Aadhaar card, and passport. These documents which are given allotted to us by the government. These are called as. Sorry for the bad network connection. Yes, Preeti Tiwari. So, PAN card, Aadhaar card, and passport, these documents which are given to you by the government, these are called as know your customer documents. Okay. Then, I will talk about some digital media of banking, which is net banking, phone banking, SMS banking. आपने ये सुना होगा, जैसे कि आप नेट बैंकिंग से कभी भी कहीं भी रात के टाइम हो, कहीं भी आउट ऑफ इंडिया हो, या कई विलेज एरिया में हो और वहां पे आपकी बैंक आसपास नहीं है और आपको कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, नेट बैंकिंग विच इज जो आपके बैंक ने आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के आप अपना अकाउंट घर से ही बैठ के या किसी भी जगह बैठ के जहाँ पे अच्छी नेटवर्क की कनेक्टिविटी हो, वहां से आप अपना अकाउंट लॉग इन करके आपकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, आप कैश वहां पे विड्रॉ डिपॉजिट कर सकते हो, आप वहां पे विड्रॉ कर सकते हो मनी, या ट्रांसफर्स कर सकते हो, जो भी आपको चीजें लोन्स वगैरह अप्लाई करनी है वो भी कर सकते हो। ओके, तो ये है नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप घर पे ही बैठ के अपनी बैंकिंग नीड सेटिस्फाई कर सकते हो। फोन बैंकिंग ये भी एक जैसा है, जिसमें आप अपने बैंक का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप अपने बैंकिंग एक्टिविटीज कर सकते हो। जैसे कि हर एक बैंक का एक अपने एप्लीकेशन होता है, जैसे HDFC बैंक हो, स्टेट बैंक हो, इन्होंने अपने खुद के एप्लीकेशन बनाए हैं, वो अपने फोन पे इंस्टॉल कीजिए। अपना आईडी पासवर्ड जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है, कॉन्फिडेंशियल जो होता है, वो आप इंस्टॉल कर लीजिए, अपने आईडी पासवर्ड डाल दीजिए और अपनी बैंकिंग एक्टिविटीज आप कर सकते हो इस केस में। ठीक है, तो ये जितने प्लेटफॉर्म इजी है उतने उसका डिसएडवांटेज भी है, बट जैसे मैंने आपको कहा, आपके बस ये 3 चीजों की टेक केयर करना है, जैसे कि आपको पासवर्ड, अपना CVV नंबर और OTP बिल्कुल भी नहीं शेयर करना। सो आपके पैसे को कोई भी टच नहीं कर सकता और उसका कोई उसके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सब था अबाउट द ऑनलाइन थिंग। Apart from that, anything if you want to know from my side, then please raise your questions.
जैसे कि स्टार्टिंग में प्रीति तिवारी ने एक क्वेश्चन रेज किया था कि म्यूचुअल फंड मतलब क्या. सो दैट आई विल गोइंग टू कवर नाउ. म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट द सॉर्ट ऑफ मनी विच इज बीइंग पुल टुगेदर फ्रॉम द मार्केट. जो हम जैसे लोग होते हैं, नॉर्मल लोग या कोई भी इंडिविजुअल, जो अपना हार्ड अर्न मनी मार्केट में डालते हैं. मार्केट में डालते हैं मतलब जैसे कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, टाटा, रिलायंस, फॉर्च्यून ग्रुप, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है, ये अपने शेयर्स मार्केट में अलॉट करती है कि आप हमारे शेयर्स खरीदो और हम आपके ऊपर इतना इतना रेट देंगे. तो जो शेयर्स मार्केट में जो जाते हैं उसके हम जो उसके ऊपर जो पैसे लगाते हैं, दैट इज नथिंग बट अ म्यूचुअल फंड. तो म्यूचुअल फंड और शेयर्स में एक बिग डिफरेंस है कि शेयर्स में शेयर्स ये जनरली पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, बट उसमें आपको रिटर्न्स कम ज्यादा होते हैं. तो यही एक डिफरेंस है और बाकी कुछ नहीं. बट म्यूचुअल फंड्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर ओन सेफ्टी, ऑन योर ओन डिसीजन. यू कैन एनी टाइम यू कैन विड्रॉ, एनी टाइम यू कैन बाय एंड सेल द म्यूचुअल फंड थिंग्स from the market. So mutual fund is nothing but the money which is being pulled together from the corporates and which is being invested into different sorts of market, और उसके ऊपर money earn की जाती है. That is nothing but a mutual fund. म्यूचुअल फंड में भी एसआईपीज होती है. जैसे कि स्टार्टिंग में कहा कि पोस्ट ऑफिस में पैसे सेव करना इज अ गुड ऑप्शन, और बैंक. तो जैसे कि मैंने कहा कि पोस्ट ऑफिस अभी थोड़ी सी ओल्ड कंसेप्ट हो गई है, बैंक में इज मोर सेफ. वैसे ही म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो बेस्ट ऑप्शन, पर म्यूचुअल फंड इज रिस्की प्रोडक्ट. आप मे बी आपको कितना फंड मिलेगा फ्यूचर में जाके, उसके ऊपर रिटर्न मिलेगा या लॉस में चले जाएगा, वो आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता. जैसे कि बैंक में आपको एक गारंटीड होता है कि जितने आपने पैसे डाले हैं और जितने आपको 5 साल बाद मिलने वाले हैं, उसमें 1 रुपए का भी डिफरेंस नहीं होगा. पर म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा सिनारियो डिफरेंट है. वो पूरे मार्केट बेस्ड होते हैं. मार्केट ऊपर गया तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, मार्केट डाउन हो गया तो आपके पैसों में गिरावट होगी. तो इट इज ऑल डिपेंड ऑन मार्केट. ओके. और डू यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू बैंकिंग ऑपरेशंस, एनीथिंग, प्लीज लेट मी नो. I hope I have covered a bit information about banking operations, about banking, about the loans, about market, share market, mutual fund, and about education loan also, about the online frauds. If you want to know anything detail about any topic, then please raise your question. I am like more happy to help you and provide you solution or give you answer on that. So मेरा तो what would be my suggestion for you, for your information, that banking is one of the safest industry to work with. जैसे कि आप अभी स्टूडेंट हो, मे बी you are in 10th 12th और 9th grade. आपने भी कभी सोचा होगा कि मेरा ड्रीम जॉब ये होगा. So from my side I can give you a assurity that banking is one of the safest industry in the world to work with. वन ऑफ द हाईएस्ट पेड इंडस्ट्री, जहाँ पे बहुत अच्छी खासी आपको सैलरी दी जाती है, बहुत अच्छा खासा रेप्यूटेड जॉब है, आपकी रिस्पेक्ट भी उतनी है, बहुत नॉलेजेबल जॉब है, और वाइट कॉलर जॉब विच जो आजकल के ज़माने में कहा जाता है कि बैंकिंग इज़ वन ऑफ द वाइट कॉलर जॉब. और सबसे सेफ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, सबसे सेफ जॉब है कि इस जॉब में आपको किसी भी तरीके का रिसेशन नहीं मिलेगा. दुनिया में सारे इंडस्ट्री में, सारे डिपार्टमेंट्स में रिसेशन हो जाएगा, पर बैंक में कभी रिसेशन नहीं होगा, क्योंकि जब तक इस दुनिया में इंसान है तब तक बैंक हमेशा रहेगी. तो बैंक सबसे सेफ इंडस्ट्री है टू वर्क विद, और एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आपको जनरेट होता है बैंक की तरफ से. सो डेफिनेटली आपका एम्बिशन होगा कि हमें भी एक बैंक में जॉब करनी है, तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड by closing your eyes and you can dream big and think for a good banker. आप एक अच्छे बैंकर बन सकते हो और आपकी अपने देश के इकोनॉमी में अपना एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हो. सो बैंकिंग इज नॉट ओनली लिमिटेड अप टू कि बैंक में जाना, पैसे निकालना, पैसे विड्रॉ करना. बैंक इज अ वेरी बिग कंसेप्ट. मैंने आपको जो बताया आज, ये बहुत ही
बेसिक था, बहुत ही छोटी इन्फॉर्मेशन थी। इसके ऊपर बहुत टेक्निकलिटीज है, बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको मैं शेयर कर सकता था। बट एज फार एज योर लाइक योर स्टैंडर्ड इज कंसर्न, आपके आपके नीड्स के हिसाब से दिस मच इन्फॉर्मेशन इज टू मच, और आप ये इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को हैंडल कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट आप डेफिनेटली यू कैन थिंक फॉर अ बैंकिंग जॉब, आप अपना एक बैंकिंग करियर कर सकते हो इंडियन इकोनॉमी में। और ऐसे ही नहीं कि इंडिया में ही, अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन गो फॉर अब्रॉड बैंक्स ऑल्सो। जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग के करियर में मैं 4 से 5 साल में इंडियन बैंक में काम कर रहा था। बट जैसे कि है कि हमें बड़ा सोचना चाहिए, बड़े सपने लेकर चलना चाहिए। वी शुड थिंक बिग एंड ड्रीम बिग। मेरा भी सपना था कि मैं बाहर के यूएस या यूके के बैंक में काम करूं, तो डेफिनेटली वो मेरा सपना पूरा हुआ और मैं एमएनसी बैंक में अभी काम करता हूँ। इसी तरह आप बाहर के बैंक्स में भी जाकर काम कर सकते हो, जहां से आपको अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। आप फॉरेन में जाके वो पर्टिकुलर बैंक में काम कर सकते हो। आपको अच्छा खासा पे स्केल मिलता है, बहुत डिसेंट जॉब होती है, और जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छा होता है एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड, यू कैन थिंक बिग एंड यू कैन अचीव योर ड्रीम्स एंड यू कैन बी अ सक्सेसफुल बैंकर एंड यू कैन परस्यू योर करियर इनटू बैंकिंग फील्ड। तो उसके लिए आपको बस एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करनी है। जैसे कि आप बेटर रहेगा कि आप 10th स्टैंडर्ड में हो एंड यू आर लुकिंग फॉर to pursue career in banking, then definitely you can go for commerce or science, any background, and you can take your graduation and you can give the banking exams and you can pursue your career. बट जैसे जैसे आप अपनी लैडर ज्यादा चढ़ते हो, जैसे आप ज्यादा एजुकेशन लेते हो पर्टिकुलर फील्ड में, तो उस फील्ड में यू कैन गेट मोर एक्सपोजर, मोर अपॉर्चुनिटीज एंड मोर हायर सैलरी पैकेजेस। जैसे कि कोई ग्रेजुएशन के बेसिस पे ही बैंकिंग सेक्टर में आ जाते हैं, तो डेफिनेटली उनका जो ग्रेड होता है वो छोटा होता है। आप उससे ज्यादा एजुकेशन ज्यादा कर लोगे, जैसे कि आप एमबीए कर लोगे, तो एमबीए करने के बाद डेफिनेटली यू विल गेट मोर एक्सपोजर, यू विल गेट हायर ग्रेड, यू विल गेट हायर पैकेज। और एमबीए करने के बाद भी इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड अप टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी और पोजीशन, देन यू कैन गो फॉर सर्टेन सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेशंस है मार्केट में अवेलेबल, अपने फाइनेंशियल इकोनॉमी में अवेलेबल, जिसके थ्रू आप अपना बैंकिंग करियर को अपग्रेड कर सकते हो। जैसे कि CFA है, FRM है, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन है। थ्रू दैट यू कैन अपग्रेड योर बैंकिंग करियर एंड यू कैन बी एट अ गुड पोजिशन। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड about banking operations and how banking is important for us today। और जैसे कि मोदी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कहा कि बैंकिंग उन्होंने सबके लिए अकाउंट्स ओपन करना जरूरी समझा है। तो बैंकिंग सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हमारे जो हार्ड एंड मनी है उसको सेफ तरीके से रखना, उसके साथ अच्छे से डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप देख रहे होगे कि बैंकिंग इतनी एडवांस हो गई है कि आज हर ट्रांजेक्शन हम बिना बैंक जाए कर लेते हैं, हमें बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर जितना बैंकिंग एडवांस होती जा रही है, उसकी उतनी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। सो बैंकिंग ये सबसे बड़ा बेस्ट करियर है और आप इसको डेफिनेटली परस्यू कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, and if you have any question, if you have any queries, please reach out to me. I will share my number and email ID once I will post this video on your school page. You can anytime you can contact me, you can call me. I will happy to solve your questions, your queries, and help you in building your career. This is not only limited for this particular session today, but my holding hands will be there for you anytime. So you can call me anytime. You can reach out to my contact number and email ID. And thank you so much, your president of Jadhavar Group of Institution, Sudhakar Rao Jadhavar sir. And I would also like to thank Advocate Shardul Jadhavar sir, who is the Vice President of Jadhavar Group of Institution. Also thanks to Smita Kulkarni ma'am, Administrative Head.
and your school principal Rakhi Vyas for inviting me today and for giving me this opportunity to share my little bit of knowledge about banking to your such a lovely student. Thank you so much once again for inviting me, and I hope you all are doing well at home. I am absolutely doing fine, and I hope you take care of. I'm hoping that you are taking care of yourself and your parents. And I'm sure you might be missing your schools, teachers, and your friends. Definitely, schools will going to start soon, and you will going to back to your normal days very soon. So hope for the best. All the best. Enjoy your this virtual school time, and all the best for your bright future. Thank you so much once again. Bye. Take care.